السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث۔ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبه، فنهتني قريش رضي الله عنهم فقالوا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اکتب فوالذی نفسی بیدہ، فاوما باصبعیہ الی فیہ وقال ما یخرج منہ الا حق، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 22 جنوری 2023 بروز اتوار ہے اور ہم یہاں جامعہ مدینۃ العلم لودھرا میں تقریب ختم البخاری کے اندر جمع ہے۔ حضرت مولانا زکریا، مولانا محمد رضوان، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، میں ان کے واسطے سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی زینت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم ان کا سایہ ہم سب پر سلامت با کرامت فرمائے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں آج ترتیب کے اعتبار سے مغرب ہی پہنچتا، لیکن میری چھوٹی بچی شدید بیمار تھی۔ میں نے ان حضرات سے گزارش کی، انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہمارے ہاں اور خطیب کوئی نہیں۔ ویسے یہ عذر معقول بھی تھا، تو بہرحال مجھے بڑے بوجھل دل کے ساتھ بڑی لیٹ سفر کرنا پڑا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے اپنی سوئی رفتار کی کوئی 140-50 سے کم رکھی ہو۔ رب کریم نے کرم کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ وہ وقت جب میں نے اپنی بچی کو یوں اس کے ماموں اور اس کی ماں کے حوالے کیا کہ اسے اسپتال لے جائیں، تو بہرحال میں تو حدیث پاک کے ختم کی تقریب میں ہوں، آپ حضرات سے دعا گو ہوں، اس کے لیے دعا کرنا اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نا، بیٹے ماؤں کو اور بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں اور بھائی بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں، تو یہاں تعلق ہی کچھ ایسا ہے۔ بہرحال میں دین کے لیے سفر کیا کہ نصاب کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم ان کی خوشی میں آئے ہیں۔ مجھے امید ہے رب کریم ہماری اس غم کو بھی خوشی میں بدل دیں گے۔ میں نے ابھی حضرت شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ سید ہیں تو سیدہ دی دعا اللہ ولیندہ نہیں ہوگا، تو سفید رسی تو دعا فرمائے اللہ صحت عطا فرمائے۔ اس سمے جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کی اہمیت کیا ہے، اور ہم یہاں ختم البخاری میں آپ سب کو بلا کیوں رہے ہیں، میں یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں کروں۔ پہلی بات کہ کیا آخری حدیث ہمیں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا نہیں آتی؟ ہم نے اس کے لیے تقریب کا اہتمام کیوں کیا، مجمع کو کیوں بلایا ہے، اشتہار چھاپ کے لوگوں کو ٹائم کیوں دیا ہے؟ جہاں ساری حدیثیں شیخ الحدیث کمرے میں بٹھا کر پڑھا دیتا ہے، تو یہ آخری حدیث بھی پڑھا دیتے۔ کیا اس آخری حدیث میں ایسی کون سی کوئی بات تھی جو مجمع عام میں پڑھانی چاہیے؟ بھائی اکیلے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ تو میں اس کا جواب اپنے اکابر سے نقل کرنے لگا ہوں
शेख उल हदीस जामिया अशरफिया लाहौर हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी रहमहुल्लाह, वो इसका जवाब यूं फरमाया करते थे कि हमें सारी हदीस इकट्ठा बैठ के पढ़ाना आती है, लेकिन हमने नमाज से एक नुक्ते का इस्तेदलाल किया। वो कहते हैं नमाज एक अकेली है, एक बाजमात है। जो अकेली नमाज है एक का एक सवाब है, बाजमात नमाज हो उस मस्जिद में हो जहां जुमा नहीं है 25 नमाजों का सवाब है। जो जामे मस्जिद है बिसबअ दराजा, हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत सहीहैन की है, 27 गुना सवाब मिलता है उस एक नमाज का जिस नमाज को आप जमात के साथ अदा करें। तो वो फरमाते हैं भाई अजान हो जाए फिर मैं आगे चलता हूं। वो फरमाते हैं हमने जमात की नमाज के 27 गुना सवाब को देखा। उसमें समझ आया कि जो बंदा इमाम के साथ नमाज में शरीक है, ये नमाज तो एक अदा कर रहा है लेकिन इसको 27 नमाजों का सवाब मिल रहा है क्योंकि जमात में है। कहते हैं हमने आगे चल के देखा कि के लिए तकबीर उला में है, कोई बंदा दूसरी रकत में है, कोई तीसरी कोई चौथी रकत में शरीक है, लेकिन कोई आखिर में भी आया है तो वो जमात में शरीक तो हो गया, रकातें उसकी रह गई। अब नमाज का सवाब इसे वो एक वाला नहीं जमात वाला मिलेगा। अगरचे दर्जा बंदी है, तकबीर उला में तो नहीं है लेकिन जमात को तो पा लिया है। कहते हैं हमने देखा जो मजमे आम है, आम लोग हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि अपने 24 घंटे में अपना वर्किंग टाइम वो हदीस पाक को दें, कुरान करीम को दें, दीन को दें, शरीयत और इस्लाम को दें। कोई बंदा कारोबार में है, डॉक्टर है तो मेडिकल स्टोर पे है या अस्पताल में है, कोई इंजीनियर है तो अपनी क्लास में है, वकील है तो अपने बार में है, अपनी अदालत में है, जो बंदा जहां मसरूफ दुकानदार है तो अपने बाजार में है। अब ये बंदे हमारे साथ शामिल तो नहीं हो सकते, लिहाजा इनको सवाब में शामिल तो करना है। तरतीब ये रखे, आखिरी हदीस में बुला ले, इनके आने से इन्हें भी इस सवाब में शमूलियत हो जाए। जैसे आखिरी रकात में शामिल होने वाला, नमाज के एंड पे आने वाला नमाज की जमात का रुकन शुमार होता है, कहते हैं इसी तरह अवाम को भी बुलाकर हम खत्मुल बुखारी में शरीक कर देते हैं ताकि ये भी सवाब में शरीक हो जाए। तो आपको बुलाने का मकसद इस अजीम तकरीब में बेहतरीन माजबीन दिल नशीन सवाब के अंदर शमूलियत करना है, वरना ये नहीं है कि मौलवी को कल हदीस पढ़ावन नहीं आती, वो तो आखिरी हदीस भी पढ़ा देते। मेरे दोस्तों, इस बुनियाद पर बुलाया गया। दूसरी बात भी अर्ज करता जाऊं, सही बुखारी शरीफ हजरत इमाम मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी अल मुतवफ़ा 256 हिजरी रहमहुल्लाह ने अपने 20 साल 18 से 20 साल की उम्र के लगभग इस हदीस पाक की किताब को लिखा है। और ये वो जमाना है जो ताजा ताजा खैरुल कुरून खत्म हुआ, फिर इसको लिखा। खैरुल कुरून किसे कहते हैं? जुमा के खुतबे में इमाम खतीब आपके सामने असा पकड़ के मिंबर पे जो कुरान और अहदीस पर मुश्तमिल खुतबा देता है, उसमें एक हदीस पाक आप सुनते रहते हैं। हदीस पाक है, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम। पाक पैगंबर ने फरमाया, लोगों 3 जमानों की इज्जत बयान कर रहा हूँ,
तीन जमानों की अजमत सुना रहा हूँ, तीन जमानों का मकाम बता रहा हूँ, तीन जमानों का मर्तबा तुम्हें समझा रहा हूँ। नंबर एक, मेरा जमाना, फिर मेरे जमाने से मिला हुआ सहाबा का जमाना, फिर उस जमाने के साथ मिला हुआ सहाबा के शागिर्द ताबईन का जमाना। ये तीन जमाने बड़े बेहतर हैं। खैरुल कुरून करनी, जमानों में सबसे अफजल जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का जमाना है। जब आका नामदार दुनिया से चले जाए, सुम्मल लदीन यलूनहुम, फिर उसके साथ जो जमाना मिला है वो जमाना सबसे करीब तर, वो हुजूर पाक के बाद बाकी जमानों से अफजल है। सुम्मल लदीन यलूनहुम, फिर उसके बाद जो जमाना सहाबा के बाद सहाबा के शागिर्द ताबईन वाला मिला है, फिर वो जमाना बाकी जमानों से अफजल है। इन जमानों को खैरुल कुरून कहते हैं, अच्छे जमाने कहते हैं, बेहतर जमाने कहते हैं, भलाई वाले जमाने कहा जाता है। तो मेरे पाक पैगंबर ने जिन जमानों को बेहतर कहा, जमाना नबवी, जमाने सहाबा, जमाने ताबईन है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना, यानी जब तक हुजूर दुनिया में थे, सन 10 हिजरी है, 11वें हिजरी का रबीउल अव्वल शुरू होता है, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, अभी तीसरा महीना 11वें हिजरी का शुरू था। रिसालत में आप दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सन 10 हिजरी पर नबवी जमाना खत्म होता है। सन 10 हिजरी से लेकर 110 हिजरी, पूरी 100 साल सहाबा का जमाना गुजरा है। ये दूसरे नंबर पे इस धरती के तमाम जमानों में सबसे अफजल, औला, अशरफ, अकरम इतना बड़ा दर्जा रखता है कि बाकी जमानों का इमाम जमाना कहलाता है। उसके बाद अगला जमाना सुम्मल लदीन यलूनहुम, फिर सहाबा के शागिर्द, सहाबा कराम के बराह रास्त सहाबा को देख के ईमान लाके सहाबा की इत्तिबा करने वाले ताबईन है, जिन्हें कुरान करीम सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 100 11वें पारे का पहला सफा रब्बे करीम फरमाते हैं, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। फरमाया पैगंबर के सहाबा इस धरती के अफजल लोग हैं। उसके बाद वल्लज़ीना इत्तबऊहुम, असल में वल्लज़ीना इत्तबऊहुम, वो लोग जिन्होंने सहाबा की इत्तिबा की, यानी ताबी बने, फिर इनका जमाना सबसे अफजल है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, इनसे अल्लाह राजी, ये अल्लाह से राजी। सहाबा का जमाना 110 हिजरी पे खत्म, ताबईन का शुरू हुआ 210 हिजरी पे खत्म। 210 हिजरी तक इस जमाने को दुआएं हैं। ये वो जमाना है जिसमें खैर गालिब है, भलाई गालिब है, अच्छाई गालिब है। ये वो जमाना। इसके बाद 210 हिजरी के बाद के जो जमाने हैं, उस जमाने को खैरुल कुरून नहीं कहते, लेकिन रब ने करम ये किया, जब हुजूर का जमाना गुजरा, सहाबा का जमाना गुजरा, ताबईन का जमाना गुजरा, अब खैर वाले जमाने तो खत्म हुए। अगले जमाने में रब्बे करीम ने इमाम बुखारी को तौफीक दी है कि उन्होंने सही बुखारी लिख के इस जमाने को भी बेहतर कर दिया। इससे पिछले जमाने में बेहतर है। इससे पिछले सहाबा का जमाना है, सहाबा के बाद ताबईन का है। मैं लगे हाथों एक जुमला कहते जाऊं, जिस इमाम के आप और हम मुकल्लद हैं, सहाबा के शागिर्द सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित अल मुतवफ़ा 150 हिजरी रहमहुल्लाह, वो शख्सियत है जिन्होंने 80 सहाबा का जमाना पाया है। इसी तरह 12 सहाबा से मुलाकात की है और पैगंबर करीम के सहाबा में 8 सहाबा से इमाम आज़म अबू हनीफा ने इल्म हदीस हासिल करके आपको और मुझे दिया है। इमाम अबू हनीफा की पैदाइश सहाबा के जमाने में है, वफात ताबईन के जमाने में है। फिक़ह हनफी मानने वालों, मुबारक है तुम लोगों को, तुम उस नबी पाक की शरीयत को उस इमाम से समझ के अमल करते हो जिसको इल्मी दूध पैगंबर के सहाबा ने पिलाया है, जिसे संभाला पैगंबर के सहाबा के शागिर्द ताबईन ने, इमाम अबू हनीफा। इसीलिए अपनी इमाम की तारीख याद रखो। हमें तारीख याद नहीं होती, जिस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। सही बुखारी का बड़ा दर्जा, बड़ा मर्तबा, बड़ा रुतबा, बड़ी हैसियत, बड़ी वैल्यू, लेकिन ये मामला इमाम बुखारी के रुतबे का बाद में है, इमाम अबू हनीफा का पहले।
کہیں یا اقتدار سے اٹھنے کے بعد کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے. حاجی مولوی نے صحیح بخاری کی بڑی تعریف کی ہے تو صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری، بابا صحیح بخاری الراس والعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن رتبے کا فرق ہے. جس طرح عثمان غنی بڑا رتبہ رکھتے ہیں، عمر فاروق بڑا رتبہ رکھتے ہیں، علی حیدر کرار بڑا رتبہ رکھتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان بڑا مقام رکھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بڑا رتبہ رکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بڑا رتبہ رکھتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر بڑا رتبہ رکھتے ہیں. لیکن یہ تمام ہی پیغمبر کے صحابہ بعد میں ہیں، حضرت ابو بکر پہلے. کسی صحابی کی تعریف کرنے سے، اس کی فضیلت بتانے سے، اس کا مرتبہ سنانے سے، اس کی حیثیت بیان کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ کم ہو گیا. بھئی امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھنے سے، امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھانے سے، امام بخاری کی صحیح بخاری کو اپنے نصاب میں شامل کرا کے آخری حدیث میں ختم البخاری کرنے سے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کی مخالفت سمجھ لو. امام ابو حنیفہ اپنی جگہ مسلم امام ہے. اور میرے دوستو، آؤ میں نے کہا میں صحیح بخاری پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی امام ابو حنیفہ کے بڑے کا درجہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جس جگہ امام ابو حنیفہ پہ رد کیا ہے، شاید میرا جملہ کسی کو تکلیف دے دے، لیکن میں تجربہ رکھتا ہوں اس معاملے میں. ہم نے بخاری الحمدللہ پڑھی بھی ہے، ایک نہیں کئی بار پڑھائی بھی ہے. امام ابو حنیفہ پہ رد نہیں ہے، وہ رد ان پہ جاتا ہے جو لوگ اہل حق نہیں ہوتے. لیکن امام بخاری پہ رد امام ابو حنیفہ پہ لوگ سمجھ جاتے ہیں، عقل کا فطور ہے. اگر آپ صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری کھولیے، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ المتوفى 855 ہجری نے صحیح بخاری کی 18 جلدوں میں شرح عمدۃ القاری لکھی ہے. جس جگہ کتاب الاقراء، کتاب الحیر میں یا قال بعض الناس میں جہاں رد کی بات لوگ کرتے ہیں، اس جگہ انہوں نے جو رد کیا ہے مرجیہ کے عقیدے پر رد ہے، امام ابو حنیفہ پہ نہیں بنتا. اور اگر کوئی کہتا ہے امام بخاری امام ابو حنیفہ پہ رد کرتے تھے، آؤ میں اس سوال کے جواب میں بھی وہ چھوٹی سی کھڑکی بھی بند کر دیتا ہوں جو لوگ زبردستی کھولنا شروع کرتے ہیں. میں نے کہا کھولیے صحیح بخاری شریف، ہم صحیح بخاری کے شروع کو دیکھتے ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری شروع کیسے کی ہے؟ میں نے دیکھا ہے صحیح بخاری ہے، اس کا پہلا باب ہے. امام بخاری نے باب کا نام رکھا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری لائے ہیں وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری. یہ جاتے جاتے امام بخاری انما الاعمال کی روایت لائے ہیں، لیکن اور راوی چھوڑیے. پہلا باب کھولیے، پہلے باب میں امام بخاری باب یہ بات باندھتے ہیں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تک وحی کیسے آئی ہے. پہلا استاد امام بخاری کا حمیدی ہے. نیچے حاشیہ کھول لیجئے، حمیدی کون ہے؟ حاشیہ میں لکھا ہوا ہے ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی. یہ عبداللہ ابن زبیر مکی ہے، نام اس کا حمیدی ہے. بھائی یہ کس سے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی صاحب مصنف عبد الرزاق سے پڑھا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بڑے اتھنٹک عالم سے پڑھا ہے. یہ تو بتاؤ عبد الرزاق جو امام بخاری کا دادا استاد، حمیدی کا ابا استاد ہے، یہ کس سے پڑھا ہے؟ تو آگے لکھا ہوا ہے عبد الرزاق ابن حمام جو امام بخاری کا دادا، امام بخاری کے استاد کا ابا استاد ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. بھائیوں میں کیسے سمجھوں؟ امام بخاری امام ابو حنیفہ کا مخالف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا لفظ جو حدیث پاک کا شروع کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو سلام کر کے کیا. میں کیسے مانوں؟ آئیے آگے آئیے، باقی تو چھوڑیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے چند اور اساتذہ دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے صحیح بخاری میں ایک استاد کا نام ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کا نام مکی بن ابراہیم ہے. یہ شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے، استاد امام بخاری کا ہے. اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد ہے. یہ استاد امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے. اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام وبه قال حدثنا عبد الرحمن
المقری ہے عبد الرحمن المقری، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام بخاری کے استاد اور بھی ہیں، ان کا نام ابو حفص کبیر ہے، امام ابو حفص کبیر رحمہ اللہ صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس سے بھی آگے آئیے، خلاد ابن یحییٰ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں فضل بن دکین الکوفی رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ آگے جائیے، یہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے کئی اساتذہ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ چھوڑو میں آگے آتا ہوں، انما الاعمال بالخواتیم، کیا مانا؟ جب مسئلہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، چیز کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اینڈ کو، خاتمے کو دیکھا جاتا ہے۔ تبھی تو آپ نے بڑے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا جو کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے، خاتمہ بالایمان کر دے، خاتمہ بالاسلام کر دے، خاتمہ بالایقان کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کلمے پر کر دے۔ یہ خاتمہ، امام بخاری کی خاتمہ والی روایت کون سی ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حسن دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، درویش امت ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں گے۔ انہوں نے اس حدیث بخاری پہ بات کر لی ہے، میں صرف جھلکی دینے لگا ہوں۔ میں نے اپنے عنوان پہ حدیث پاک کی عظمت پہ بات کرنی ہے، لیکن جھلکی سنیے۔ صحیح بخاری کی یہ آخری کتاب ہے، اس کا نام کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ ہے۔ اس کا آخری باب نمبر 93 ہے، باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرم، پوری ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث ذکر کی ہے، امام بخاری نے 5 استاذوں کے واسطے سے رسالت مہاب تک یہ آخری حدیث ذکر کی ہے۔ فبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان کی روایت امام بخاری لائے۔ اس سے پہلے 5 امتیوں کو لایا، جس میں ایک صحابی ہے، باقی 4 پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر اس کے بعد اتباع تابعین ہے۔ ان 4 امتی راوی، 5واں صحابی، چھٹا اللہ کے رسول کے بعد سند وہاں تک پہنچتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو 5 اساتذہ لائے ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ تو صحابی ہیں، لیکن پہلے 4 کون ہیں جس میں امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے، بخاری کے اختتام کیا ہے؟ آؤ ان کی تحقیق کرتے ہیں۔ احمد بن اشکاب بھی کہتے ہیں، احمد بن اشکاب بھی کہتے ہیں، بالفتح بھی ہے بالکسر بھی ہے، دونوں بین السطور لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا استاد امام بخاری کا۔ آگے آئیے، احمد بن اشکاب کے بعد عمارة بن القعقاع ہے، ابو زرع ہے، اور اس طرح یہ حضرت امام احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارة بن القعقاع، ابو زرع، یہ 4 ہے۔ ابو زرع کا نام حرم ہے، حاشیے میں دیکھ لینا، اسمہ حرم۔ یہ چاروں بزرگ کون ہیں؟ امام بخاری نے ان پہ صحیح بخاری ختم کی ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، اکابرین کا استدلال لانے لگا ہوں۔ کھولیے شرح کرمانی، جس کا پورا نام ہے الکواکب الدراری علی جامع البخاری۔ حضرت امام کرمانی نے اس آخری حدیث پاک میں لکھا ہے فیہ لطائف، اس میں بڑے بڑے نکتے ہیں۔ الاول کہتے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے، اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں بزرگ، احمد بن اشکاب ہو گیا، محمد بن فضیل ہو گیا، عمارة بن القعقاع ہوا، یا ابو زرع، امام حرم ہوئے۔ اربعۃ، یہ چاروں، کلہم کوفیون، یہ چاروں امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوسی لوگ ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے، امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد سے کی ہے۔ امام بخاری نے بخاری ختم کیا ہے، امام ابو حنیفہ کے در پہ ختم کیا ہے۔ اور بخاری ابو حنیفہ کے در سے شروع ہو کے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے در پہ ختم ہوتی ہے۔ جاہل مطلق وہ شخص، اوپر کی منزل اس کی خالی ہے، عقل سوچ فرد کا نام اس میں نہیں ہے۔ کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ، اس کا دل محبت سے خالی، اس کا دماغ سوچ سے خالی، جو کہتے امام بخاری امام حنیفہ کا مخالف تھا۔
मैं तो यूं चट्ठा किट्ठा बाजों को खोल के रख देता हूं कि आप बताइए इमाम बुखारी ने किस जगह इमाम अबू हनीफा पे रद्द किया है। अकल के अंधे सवाल करते हैं, एक बात कहे जी बड़े शौक से कहे, पूरी बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने इमाम अबू हनीफा का नाम लिया है। मैं बड़े सीना तान के कहता हूं जी नहीं लिया। कहते पता चला इख्तिलाफ था। सवाल पूरा हो गया? जी पूरा हो गया। ओके, जरा आप सीना संभाल के बैठना, मेरी बारी है। वो कहते हैं इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमा। मेरी बारी, अब मेरे सवाल का जवाब दो। इमाम बुखारी ने इमाम हनीफा से कोई रिवायत नहीं ली, तो इसका क्या मतलब कि इख्तिलाफ है? जी हाँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह किसके मानने वाले हैं? कहते इमाम शाफिई। तबक़ात में ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह ने लिखा है वो शाफी, इमाम शाफी के मानने वाले हैं। मैंने कहा जी बहुत बेहतर, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम तस्लीम करते थे? कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा इसका अपना इमाम, इमाम बुखारी का इमाम शाफी है, क्या इसने पूरी किताब पे किसी जगह अपने इमाम शाफी से रिवायत ली है? अब लेकिन चूंकि चुनाचे गोया बगले झांकना शुरू, और खुदा के बंदे हमारी सराकी में कहते हैं नक ओपिया खादा जरा औखा करे ज्यादा। अल्लाह के बंदे वो इतराज न करते जो उसका जवाब तुमसे संभाला न जाता। उसने इमाम शाफी रहमतुल्लाह से भी रिवायत नहीं ली, हालांकि वो उनको अपना इमाम मानते हैं। बता फिर इमाम बुखारी का अपने इमाम से भी इख्तिलाफ था? कहते नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपने दौर के असातिज़ा से रिवायत लाए हैं, इमाम शाफी से नहीं लाए। मैंने कहा यही जवाब इमाम हनीफा के लिए भी ले ले। उधर क्यों एतराज बना के बैठा फिरता है, उधर क्यों इश्काल बनाया है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, हजरत इमाम बुखारी ने इस तरह खैरुल कुरून के खत्म होने के बाद सही बुखारी को माराज़ वजूद मिला के उम्मत पर एहसान किया। और मेरे दोस्तों में एक जुमला मजीद कहता हूं, सही बुखारी शरीफ के खत्म में उलमा ने फरमाया कि इस पे दुआएं कबूल होती हैं। आज यहां आप बैठे हैं, अपनी कब्र आखिरत की दुआ पहले और दुनिया की दुआ बाद में करना, क्योंकि दुनिया का नुकसान तो नुकसान होता है, आखिरत का नुकसान तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आखिरत को मद्देनजर रखें। कब्र हाँ दुनिया भी मांगे, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन तरजीही बुनियाद पे बंदा आखिरत मांगे। कहीं ये ना हो, मुझे एक शख्स ने कहा मौलाना काबे पर पहली नजर पड़े तो दुआ कबूल है, उम्रे के सफर पे जा रहा हूँ। जी हाँ कबूल है। अच्छा ठीक है, वालत में मंगसा मैं को हर वेले बुखार थी, अल्लाह सेहत अता फरमाना। और खुदा दा बंदा ठीक है ये भी दुआ मांग, लेकिन ईमान दी मांग जा। यार बुखार तो वैसे ही चलते रहते हैं, किसी को तकलीफ। यार मैंने बड़े बड़े औलिया का नाम में पढ़ा है, बड़े बड़े औलिया में, बड़े बड़े बंदों के नाम, बड़े बड़े मुजाहिदीन इस्लाम के नाम में पढ़ा है कि जिनको 50-50 साल तक कमर का दर्द नहीं गया। शहीद इस्लाम उसामा बिन लादेन रहमतुल्लाह के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? उसामा ने खुद ये इंटरव्यू में हामिद मीर का आप पढ़ ले, कहते 44 साल से मुझे बैकबोन, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मुझे दर्द है, क्या करूं? तो ये तकलीफें चलती रहती हैं, इन तकलीफों पे दिल छोटा नहीं करते। वो कहते हैं ना कहरे सजन गाह गा, लुत्फ सजन दम बदम, ई सजन वाह वाह ऊ सजन वाह। मेरे ख्याल में उलट हो गया है, उलट हो गया है। शेर इस तरह था कि लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गा, ई सजन वाह वाह ऊ सजन वाह। तो एक बंदे को अस्पताल जुटा के इतना बले तो दिमाग इतना ही कम कर रहा। मेरे दोस्तों सही बुखारी शरीफ हदीस पाक की किताब है, और सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जितनी अहदीस पाक को जिक्र किया है, उन अहदीस पाक में हमें नजर आता है हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह शुरू करते हैं मक्का मुकरमा की वही से, खत्म करते हैं हजरत अबू हुरैरा पे। सवाल उठता है भाई वजह क्या है? इमाम बुखारी ने शुरू मक्का मुकरमा से किया है, खत्म हजरत अबू हुरैरा पे किया है। वजह क्योंकि इमाम बुखारी पहला रावी हुमैदी लाए हैं, हुमैदी मक्का मुकरमा के रहने वाले हैं, और आखिरी उम्मत में सहाबी रावी हजरत अबू हुरैरा लाए हैं, ये मदनी हैं। इनकी कब्र मुबारक आज भी मदीना में मौजूद है। जो लोग सऊदीया गए हैं ना, वो जानते हैं कि सऊदीया के एक शहर है अलबाहा, बहुत ठंडा एरिया, मरी की ठंडक को भी पीछे छोड़ दी, अलबाहा इतना ठंडा। और हजरत अबू हुरैरा का कबीला दौस इसी अलबाहा के रहने वाला।
कबीला दौस जो है वो अलबाह का रहने वाला है। आपको भी वेदर ऑफ अलबाह इन सऊदी अरब लिखिए, आपको गूगल भी बता देगा कि वहां का वेदर और मौसम क्या होता है। मेरे दोस्तों, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, इस पर इमाम बुखारी ने खत्म किया मदनी पर। वजह उलमा फरमाते हैं वजह ये है, हजरत इमाम बुखारी ने उन्वान कायम किया था कैफ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी पर वही का इब्तिदाइया कैसे हुआ, वही शुरू कैसे हुई, कुरान की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये उन्वान है, मेन चैप्टर हेडिंग है। फिर इस पर दलाइल लाए हैं, तो पहला रावी मक्की लाए हैं ताकि पता चले वही मक्का मुकरमा से शुरू हुई है। और इमाम बुखारी ने सही बुखारी में सब दलाइल देकर हजरत अबू हुरैरा आखिरी उम्मती रावी मदनी लाए हैं। इशारा बड़ा किनाये के साथ दिया है, लोगों जो वही मक्का से शुरू हुई तो वो मदीना तैयबा में आकर पूरी हो। ये बाज इशारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे हैं जिन इशारों में जो चीजें मौजूद होती हैं इनको फिर गौर और खौफ से समझना पड़ता है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह पहला रावी जो लाए हैं इसका नाम है हुमैदी। आखिरी हदीस की सनद में पहला रावी जो लाए हैं उसका नाम है अहमद। कहते हैं वजह शुरू में भी हमद, आखिर में भी हमद, पहला रावी भी हमद के लफ्ज से और आखिरी हदीस का पहला रावी भी हमद के लफ्ज से। कहते हैं कुरान करीम में है लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद शुरू में भी करो आखिर में भी करो। इसलिए तो गुफ्तगू में आप सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु या नहमदुहु व नस्तईनुहु, हम से शुरू करते हैं और जब खत्म करते हैं व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, तब भी हमद कहते हैं। तो इस आयत पे अमल है, शुरू में भी हमद है आखिर में भी हमद है। इमाम बुखारी ने खिताबत के इस उसूल को मद्देनजर रखा, पहला रावी भी अहमद, पहला रावी भी हुमैदी हमद चलाए हैं, आखिरी रावी अहमद भी हमद चलाए। कहते हैं इसकी एक और वजह भी है, इसकी वजह यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने खत्म नबुव्वत पे दलील दी है। कहते हैं जी खत्म नबुव्वत पे दलील कैसी? फरमाया अकीदा खत्म नबुव्वत ये है, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम में नाम नामी इसमें ग्रामी में भी हमद मौजूद है। जमीन पे नाम मोहम्मद, आसमान पे नाम अहमद, और ये नाम कुरान करीम में जिक्र है। 4 जगह मोहम्मद, 1 जगह अहमद रब्बे करीम ने आयात में मेंशन फरमाकर कुरान का हिस्सा बनाया है। तो कुरान करीम में मोहम्मद का लफ्ज भी है जो जमीन पे नाम है, अहमद का लफ्ज भी है जो आसमान पे नाम है। एक माना और भी है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ये नाम तो मिला क्योंकि तारीफ का महल दरअसल आखिर होता है, शुरू में तो करते हैं लेकिन असल महल तारीफ का आखिर में होता है। कहते हैं जी वो कैसे? मैं मिसाल देता हूं, मैं इस प्रोग्राम में नहीं आया, मुझे नहीं पता ये खत्म बुखारी का निजाम कैसा है, जलसा का कैसे है, स्टेज कैसे है, मजमा कैसे बैठा है, हुस्न इंतजाम है या कुबह इंतजाम है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आया, मैंने देखा, सारा विजिट किया, जब जाने लगा तब मैं तारीफ करूंगा। हुस्न इंतजाम भी था, मजमे ने भी बड़ी गौर से सुना, उलमा और मुंतज़मीन ने भी बड़ी मेहनत की, माशाअल्लाह बेहतरीन माजबीन दिल नशीन नसीन। फिर मैं तारीफ करूंगा जब एंड होगा, तो तारीफ हमेशा एंड पे होती है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हुजूर पाक के नाम को सामने रखा कि हुजूर का नाम मोहम्मद है, बाकी किसी नबी में माद हमद वाला नाम तो नहीं है, ये आखिरी नाम हुजूर पाक को मोहम्मद मिला। क्यों मिला? फरमाते वजह कि तारीफ आखिर में है, तो पता चला हमारा नबी भी आखिरी नबी है। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर पाक पे जो कुरान उतारा, पहली सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी थी, लेकिन हुजूर पाक ने सहाबा कराम से पहली सूरत लिखवाई कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाह। पता चला हमद सूरत है, हम तारीफ को कहते हैं, तारीफ आखिर में है, तो आखिरी नबी पर उतरने वाली किताब शुरू हो रही है, हमद आखिर में, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हुजूर पाक को उम्मत रब ने दी, उम्मत का नाम रखा उम्मत हम्मादून, तारीफ वाली उम्मत। क्यों? मोहम्मद अहमद की उम्मत, उम्मत हम्मादून। आसमान पे नाम अहमद, जमीन पे मोहम्मद, माना हमद तारीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उम्मत हम्मादून दे दी।
तारीफ वाले नबी की आखिरी उम्मत, पता चला न नया नबी है न नई उम्मत है, न नबी कोई है न उम्मत कोई है। यही तो हदीस पाक है। हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कौमी असम्बली में मिर्जा कादियानी की औलाद का मुंह बंद किया। मैं इसी पर एक जुमला कहता हूँ, वरना मैं हुमैदी पर बात करूंगा, तवज्जो रखना। बात आई है तो मैं जुमला समझाने लगा हूं। जब कादियानियों से बहस हुई थी ना कौमी असम्बली में, तो मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में कादियानियों ने मिर्जे कादियानी की नबुव्वत झूठी साबित करने के लिए कुरान का सहारा लिया। बड़े हैरान में, तो कुरान पाक मिर्जे दी नबुव्वत किथे? अजी पढ़ो केड़ी आयत? जी कुरान में है वह खातमन नबीयीन का। जी आयत तो है, सूरत अज़ाब आयत नंबर 40 है। तो कहते हैं इसमें है खातमन नबीयीन। तो खत्म नबुव्वत का माना क्या है? हुजूर आखिरी नबी हैं। इन्होंने खत्म का एक और माना लगाया। एक लफ्ज के कई माना हो सकते हैं। देखो ये है मोबाइल, पुलिस की चलती फिरती गाड़ी को क्या कहते हैं? मोबाइल। फिर एक है पेट्रोल, जो आप गाड़ी में डालते हैं। एक है पेट्रोलिंग। एक लफ्ज का कई मतलब। ये है स्पीकर, माइक और स्पीकर है। ये माइक और वो, इस स्पीकर का क्या मतलब है? ये स्पीकर, हाँ ना। और इसी तरह अगर कौमी असेंबली में स्पीकर 2 नंबर है, फिर ये मुराद होगा। तो वहां और लफ्ज, हर लफ्ज के कई माना होते हैं। तो कादियानियों ने डंडी मारी दरमियान में। अजी क्या कहा? खातमन नबीयीन लफ्ज है ना, तो खत्म नबुव्वत का मतलब सिर्फ ये नहीं है हुजूर आखिरी है। खत्म नबुव्वत का मतलब है हुजूर मोहर वाले नबी है, क्योंकि खत्म अल्लाह वाला कुलूबिम, खत्म खातम का एक मादा खत्म है, इसका माना मोहर होता। अजी लो उल्टा सीधा करके इस तरह के माना ये कादियानियों ने निकाले। मैं इसी पर मिसाल दिया करता हूं कि लफ्ज बने नहीं ना, लोग उल्टा सीधा करके निकालते हैं। तो मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूं। एक आदमी था, बड़ा शत्ताम था, गालियां देता था, हर बंदे को गालियां देता, जो नाम होता उसका उल्टा बिगाड़ देता। एक बंदा उनके सामने, उसका नाम था हाजी। तो ये परेशान हो गया कि हाजी को गाली कैसे दे? हाजी हाजी को मंदा कड्ढा, ते मौलवी आकर रन छूट गई, काम खराब है, डर गया। लेकिन सोचता रहा भाई एक बार हाजी बचना तय, मेरे को कोई नहीं। करता 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 शैतानी दिमाग चल रहा है ना, तो उसने हाजी को गाली निकालने के लिए पूरी तरतीब बनाई। कहा तू है हाजी, इसका वजन बनाओ, बनता है चाजी। चाजी फारसी में कहते हैं कमान को, कमान में एक गाफ लगा दो, बनता है गुमान। गुमान का माना होता है शक, शक के 3 नुक्ते हटाकर एक गाफ लगा दो तो बनता है सग, और सग कहते हैं कुत्ते को, लिहाजा तो कुत्ता। उस बेईमान से पूछ भाई ये हाजी और सागा का कोई जोड़ है? नहीं, यही कादियानियों का काम है। वह खातमुन नबीयीन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल आखिरी नबी के लिए रब ने उतार दिया, इन्होंने उसको नबुव्वत जारी होने के लिए बना दी। मेरे दोस्तों, मुफ्ती महमूद की कब्र पर रब करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत मुफ्ती महमूद ने जो जवाब दिया है ना, यकीन माने आज भी हजारों किलोमीटर दूर बैठा मिर्जा मसरूर यूं कांप रहा। आज भी मिल्लत कादियानिया की टांगे कांप रही हैं। आज भी मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने फरमाया, कोई लफ्जी चक्रों में पढ़ने वालों, ये लफ्ज अरबी के तुम्हें आते हैं? अजी मुंजद शुंजद से देख के इधर उधर लुगत से माने निकाल के तो मतलब बताने वालों, ये अल्फाज रसूलुल्लाह पे उतरे हैं, खातमन नबीयीन। हुजूर के सहाबा और अहले बैत ने इसको हुजूर पाक से समझाए। जा सहाबा और अहले बैत के दरवाजे पे, उनसे पूछ इसका मतलब क्या है। जब मुफ्ती साहब ने ये इस्तेदलाल किया ना, तो किसी के मुंह पर जैसे 12 बजते हैं ना, इकट्ठे 12 नहीं बजते, 12 से पहले 11:45 बजते, फिर 12, फिर 12:15, फिर 12:30, पूरी घड़ी बजी खड़ोती होगी। तो उसके चेहरे पे भी 11:45, 12, 12:15, 12:30 के लिए यूं सुइयां घूमना शुरू। मुफ्ती साहब ने कहा आओ पूरे सहाबा के मजमे में, पूरी पैगंबर की आले बैत में एक हदीस सुना दे जो हुजूर पाक ने इस आयत को पढ़ाते हुए, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को समझाते हुए इसका मतलब ये बयान किया हो कि आखिरी नहीं है, मोहर है। पढ़ो, जुर्रत है तुम में तो पेश करो। मजाल के कोई पेश करे तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने कहा, वो कहते हैं ना, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मुफ्ती साहब ने कहा जी मैं आयत पढ़ता हूँ, मैं हदीस पढ़ता हूँ, सुने। मैंने आयत पढ़ दी, खातमुन नबीयीन आयत तो पढ़ी थी, कहा इसकी हदीस पाक में शरा है। जब ये आयत उतरी, मुस्नदुल बज़्ज़ार में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मतलब बताया,
खातमन नबिय्यीन का मतलब ये है अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया के बाद नई उम्मत नहीं है। तो हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो काम किया ना, ये खातमन नबिय्यीन के लफ्ज से उम्मत मोहम्मदिया, तो हुजूर पाक की उम्मत का नाम हम्मादून ना। मैंने यहीं से एक बात चला, इसी पर एक जुमला मजीद कहकर मैं उन्वान पर बात करने लगा हूं। तवज्जो, आज हम बड़े खुशकिस्मत दिनों में बैठे हैं। इस वक्त कौमी असम्बली ने एक बिल पेश किया है और उसको पास भी किया। मौलाना चतरारी ने बिल पेश किया और पूरी असम्बली ने उसको मेजॉरिटी के साथ पास किया है। और मजे की बात, जमीयत उलमा इस्लाम के डिप्टी स्पीकर जनाब जाहिद अकरम दुरानी के दस्तखत से पास हुआ है। वो बिल क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और पैगंबर करीम की अहले बैत की तरफ कोई मेली आंख देखेगा ना, पूरी जिंदगी जेल के सलाखों में सड़ता रहे। उलमाए कराम को जब भी रब ने पावर दी है ना, इन्होंने आपके ईमान पर पहरा दिया, आपके ईमान पर पहरा दिया। यकीन मानिए, जितना हिस्सा बकदर जुस्सा, जितना हमारा वहां शेयर है उतना हम मनवा रहे हैं। सिर्फ ये भी नहीं, एक जुमला आगे भी, पूरे पाकिस्तान कोई मस्जिद वाला मुतवल्ली जाए और बैंक में कह दे अजी मेरा अकाउंट बनाओ, कोई मोहतमिम सब जाए मदरसे का अकाउंट बनाओ, आज तक अकाउंट बनाने के लिए बैंक तैयार नहीं है। खुद मैं अपने मदरसे के अकाउंट के लिए गया तो उन्होंने कहा जी सोर्स ऑफ इनकम बताएं, सोर्स ऑफ इनकम शो करें, सोर्स ऑफ मनी शो करें। अजी मौलवियों ने डोनेशन ही लभदी है, चंदा ही मिलता है, अजी नहीं सोर्स ऑफ इनकम बोलो जी। झूठ बोलने पड़ते हैं लोगों को वहां जाके, अजी मेरा फिलहाल कारोबार है भावे हो वही कोई। हाँ भाई ये मान, झूठ आज तक मदारिस और मसाजिद के साथ हर बैंक में चल रहा था। अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत मौलाना को, उन्होंने कहकर ये बात मनवा ली हुकूमत से कि अब कोई मुतवल्ली मस्जिद जाए या मदरसे का मोहतमिम जाए अकाउंट बन जाएगा। ये कम बात है। आजकल अभी लोग कहते हैं इनकी खिदमत क्या, बाबा यही खिदमत है जो दीन के लिए चल रहे हैं। मिल्लत कादियानियत पहले तो कांप रही थी, हाय हाय मौलवी असम्बली में ना आए, हमारी दाल नहीं गलती। हमने कहा तुम तो तुम रहो, मौलवी ने तुम्हारे छोटे बहन भाइयों का भी हिसाब पूरा कर रखा, साहब और अहले बैत के मुनकर के लिए भी वही मामला। तो मेरे दोस्तों, उम्मत मोहम्मदिया पर बात मैंने चलाई। मेरे पाक पैगंबर की उम्मत का नाम उम्मत हम्मादून है, रिसालत में आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद में मादा हम्द है, हम तारीफ को कहते हैं उम्मत हम्मादून, इसमें भी मादा हम्द है। तारीफ वाली उम्मत, पता चला आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, क्योंकि तारीफ आखिर में होती है। आगे आइए, कयामत का मैदान होगा, मैदान महशर में रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के दरबार में पेश होंगे, हुजूर पाक अपनी उम्मत के रहबर, कायद, लीडर, रईस के तौर पे एक परचम अल्लाह के रसूल को दिया जाएगा, उसका नाम है लिवाउल हम्द, तारीफ वाला झंडा। तो तारीफ वाला झंडा सिर्फ इन्हें क्यों मिलेगा? क्योंकि इनके नाम मोहम्मद है, माना तारीफ है। इन पे जो किताब शुरू होती है अलहम्द है, मतलब तारीफ है। जो उम्मत मिली है वो हम्मादून है, माना तारीफ है। तारीफ आखिर में है, पता चला लिवाउल हम्द, तारीफ का झंडा दो आखिरी नबी का परचम। और अभी अजान हुई ना, मैंने वक्फा किया कि अजान का जवाब दे, उसके बाद दुआ पढ़ी, वबअस्म मकाम महमूदा, है दुआ या नहीं? क्या मतलब? ये दुआ हम क्यों मांगते हैं? वजह, मांगने का मामला क्या है? रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने उम्मत को समझाया, लोगों अल्लाह ताला ने जन्नत में एक मकाम ऐसा बनाया है जिसका नाम मकाम महमूद है, और वो रब्बे करीम अपने सबसे प्यारे बंदे को अता फरमाएगा। मेरे लिए हुजूर ने फरमाया, मेरे लिए दुआ किया करो, अल्लाह वो मकाम आपके नबी को अता फरमाए। पूरी उम्मत मांगती है, वबास्मा मकाम महमूद अल्लज़ी वअदता, मेरे मौला जो आपने वादा किया वो हुजूर पाक को मकाम दे दे। इस पर कुरान करीम में भी आयात मौजूद है। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, तो हुजूर पाक को जो सबसे आखिरी मकाम मिल रहा है, मकाम तो कई है ना जन्नत में, हाफिज कुरान है ना, इसके लिए मकाम नहीं है। इकरा वर्तक वरतिल कमा कुंत तुरतिल फिद दुनिया फइन्न मंजिलक इंद आखिर आयतिन तकराउ बिहा, जामे तिरमिज़ी अब्वाबिल कुरान। हजरत इब्न उमर अन्हुमा की रिवायत है, फरमाया आखिर हाफिज कुरान को कहा जाएगा
आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के पढ़, जैसे दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था। ठीक है, कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, कमा कुंत तकराउ फिद दुनिया नहीं है, दुनिया में पढ़ता था, दुनिया में ठहर ठहर के खूबसूरत पढ़ता था। जहां पर तेरा आखिरी आयत का नंबर पहुंचेगा वही तेरा आखिरी जन्नत में मकाम। ये उस हाफिज को है जो हाफिज ग्राइंडर ना हो, हाफिज जूसर ना हो, ये उसके लिए है। आजकल कुछ हाफिज ग्राइंडर बने हुए हैं, इवें पढ़ से अल्लाह अकबर दिलावा तरावी समझ काख दी नहीं आवे, बस यह पता लग जाए कुरान ही पढ़ता पिया, हदीस नहीं पढ़ता खड़ा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कोई नहीं पता होता। बाबा ऐसे पढ़े जो समझ तो आए, ऐसे पढ़े जो पता तो चले, या कम से कम लफ्जों को तो पता चले, तर्जमे का चलो नहीं पता चलता आवाम को। तो कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्न मंजिलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा, तो उस हाफिज के साथ ये वादा। और जो हाफिज हो, हाफिज इसलिए कहा जाता है हाफिज होना चाहिए। लोग अजीब किस्म के हाफिज हैं, रमजान में कुरान देखेंगे, भाई रमजानी हाफिज न बनो, जमानी हाफिज बनो, पूरा जमाना। और जमानी हाफिज वो है जिसे सदकन कुरान याद, मतलब तो भूल जाते हैं। कुरान करीम और किताबों में यही तो फर्क है कि किताबें पढ़ाने से आती हैं, कुरान पढ़ने से आता है। ये मुस्तगनी किताब है, मुतकल्लम खुदा की सिफत है, कलाम मुतकल्लम की सिफत होती है, इसके सामने सर झुकाना पड़ता है, इसलिए इसको पढ़ने से आता है। पढ़ा एक हाफिज 10 साल भी पढ़ाए ना, जब तक खुद नहीं पढ़ेगा उसकी मंजिल मजबूत नहीं हो। तो इसलिए हाफिज होना चाहिए, हाफिज बने, अल्लाह हाफिज ना बने। कुछ लोग अल्लाह हाफिज बने हुए होते हैं, तो हाफिज अल्लाह हाफिज। एक बंदे ने दूसरे को कहा, एक का नाम था खुदा बख्श, तो उसको खुदा खुदा कहते थे। उन्होंने कहा खुदा बड़ा पक्का हाफिज है। दूसरे ने कहा खुदा को कख नहीं आता, वो तो पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो खुदा कैसे हाफिज है? खुदा हाफिज नहीं है, ऐसे तुझे किसी ने गलत किया। उन्होंने कहा नहीं यार, मैंने इसकी बड़ी तारीफ सुनी है। कहाँ सुनी है? उन्होंने कहा हर ट्रक के पीछे, हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। उन्होंने कहा लोग को भी खुदा हाफिज होता है, खुदा हाफिज नहीं, जो खुदा बा इसको तो हाफिज पढ़ेगा। तो अजीब दुनिया का मुआशरा है ना। तो यहां भी मेरे दोस्तों हिफ्ज मजबूत होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। तो फरमाया तेरी आखिरी मंजिल वही आखिरी दर्जा जहां पर आखिरी आयत। तो इसी तरह रसूलुल्लाह को भी एक मर्तबा दिया जाएगा, वो क्या है? मकाम महमूद। और ये जन्नत में हर वली से, हर नबी से, हर मुकर्रब से, हर मलक से, हर फरिश्ते से आला आला अशरफ दर्जा है, इससे ऊपर दर्जा नहीं है। वो मकाम महमूद है, वो मेरे पाक पैगंबर को मिलेगा। और उस महमूद में भी लफ्ज हम्द है। हम तारीफ को कहते हैं और तारीफ आखिर में है। पता चला आखिरी नबी का आखिरी मकाम। कादियानियों की यहां दाल नहीं गलती, ठीक है ना, हर जगह खत्म नबूवत खत्म नबूवत। तो मैंने आपको कहा कि इमाम बुखारी ने पहला लफ्ज शुरू किया वबिही काल हद्दसना हुमैदी, और आखिरी रावी का, आखिरी रिवायत का पहला रावी वबिही काल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब। उधर भी हम, इधर भी हम। इमाम बुखारी ने हमद इब्तिदा और इंतहा में ला के आपको और मुझे खत्म नबूवत का अकीदा याद करवाया, अकीदे खत्म नबूवत समझाया कि किस तरह अकीदे खत्म नबूवत। और मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सही बुखारी शरीफ मुरत्तब करके उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ अकायद नहीं दिए, मसाइल भी दिए हैं, दलाइल भी दिए हैं, जुर्रत भी दी है इमाम बुखारी। आप कहेंगे जुर्रत का मतलब? ये सही बुखारी की आखिरी हदीस अभी हजरत मौलाना पढ़ेंगे आपके सामने, सारे तलबा को पढ़ाएंगे, आप उसमें शिरकत फरमाएं, बहुत बड़ा सवाब का काम है। लेकिन एक लफ्ज कहता हूं, ये जो आखिरी हदीस है, वबिही काल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब काल हद्दसना मोहम्मद इब्न फुज़ैल की रिवायत। इसका मेन चैप्टर हेडिंग जो किताब है ना, उस किताब के 2 नाम है। एक है किताब तौहीद, एक और नाम भी है जो आम तौर पे बयान नहीं करते, साथ लिखा होता है। वो नाम क्या है? किताब तौहीद व रद्द अलल जहमिया। किताब रद्द अलल जहमिया, जहमी फिरके पर रद्द, जो 2 नंबर अकीदे देते थे, 2 नंबर मसले सुनाते थे, घड़ांतू मसला, पेट से बनाया हुआ पेटू मसला सुनाने वाले जामी लोग थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उन्हें बताया, तौहीद का नाम लेकर डंडी मारने वालों, किताब तौहीद व रद्द अलल जामिया। और तौहीद इसका नाम नहीं है, शरीयत में 2 नंबरियां करो। आओ मैं तुम्हें शरीयत की पूरी तौहीद का मतलब समझाने लगा हूं। तो इमाम बुखारी ने 93 बाब कायम किए इसमें, किताब तौहीद व रद्द अलल जामिया। क्या
मतलब क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये वर्रद अल जामिया से इमाम बुखारी जाते जाते उलमा को जुर्रतमंदाना सबक दे रहे हैं। ये किताब एक रिंदाना अंदाज पेश कर रही है कि ये न हो कि तुम वो बन जाओ, हर जगह वो बात करो जिससे सब राजी हो, वो बात करो। जैसे आजकल हमें मीटिंग्स में कहा जाता है कि इस जगह हम सरकारी लेवल पे जाए, हजरत शाह साहब बैठे, इन्हें भी इत्तेफाक हुआ होगा, बाकी उलमा को, हमें ब्यूरोक्रेट्स ये बोल वचन देते हैं, अजी ऐसी बात करे जिससे सब राजी हो। एक मरतबा तो एक मीटिंग में मुझे फिर कभी कभी कुरैशी रग फड़क उठे तो मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा यार हमें ये बताओ, आप कहते हो ऐसी बात करो जिससे सब राजी हो, ये तुम हमें समझाने के लिए बुलाए हो या हमसे समझने के लिए हमें बुलाए? उलमा को समझाया जाता है या समझा जाता है? अजीब मसला जी में लोग आसन ना, मसलन मौलवी साहब दुआ से हजरत एक मसला न सोचा तो असल दसन ना पूछण ना आसन, दसन आसन मैं कोई मसला पता है। आज मौलवियों को लोग मसला दसन में। एक बंदा मेरे पास आया, जी अम्मा जी आधी पई है, मैं जाल अपनी को तलाक दे। मैं कहता है ना हाँ, मौलवी को फतवा लिखवा कि इकट्ठी तलाक ले, तो तलाक नहीं थी। मैं कहा मेरा पुत्र तेरी मां मुफ्ती है? अजी नहीं। तो मैं कहा पूछण आया दसन आया, मैं इकट्ठी तलाक ले तो नहीं थी। त्रै चाटा मैं तेको मुंह वाले इकट्ठे मारा, तेरे हिंदुस्तान दे नक्शे वाला मुंह बढ़वे सी, त्रै चाटा लग सकते, त्रै तलाका नहीं थी। अजीब नजरिया है। उलमा के पास आकर लोग मसला बताते हैं, पूछते नहीं। और खुदा के बंदे अहले इल्म के पास अपने बर्तन को खाली करके आए, इनसे कुछ समझने के लिए आए, बताने के लिए आए। तो हमें कहते जी ऐसी बात करें जिससे सब राजी हो। मैंने कहा ये बातें हम नहीं कर सकते। हम बात करेंगे अल्लाह वाला राजी होगा, शैतान वाला नाराज होगा। असा थडाऊ कुरान शुरू करेंगे, फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान कहते हैं शैतान मरदूद से पनाह मांगो। ये शैतान को मरदूद कहकर कुरान शुरू करते हैं। शैतान राजी होगा? को तुम मरदूद है, वो राजी हो सी? तो पहले तो शैतान को नाराज करके कुरान शुरू करते हैं। तो ये लॉजिक कहां से आई? ऐसी बात करो जिससे सब राजी हो। नाना बाबा ये कहो हक बात करो, ये कहो सच्ची बात करो, ये कहो मीज़ान अदल पे कायम कहकर बात करो, ये कहो दलील के साथ बात करो। हमें ये ना सिखाओ वो बात करो जिससे सब राजी हो। मैंने कहा सुने उलमा अंबिया के बारे से है या नहीं है? कहते जी हैं। तो मैंने कहा मुझे पहले ऐसा नबी दिखा दें जिससे उस जमाने के सब राजी हो। आदम अलैहिस्सलाम से सब राजी थे। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। शैतान तो पहले नाराज था। दसो सर आप कहते जी सब राजी हो। नीचे आ जाए, हाबील और काबील का मुकाबला हुआ है, सब राजी थे। इससे आगे आए नूह अलैहिस्सलाम का दौर है। हजरत नूह ने, कुरान कहते हैं फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, 950 साल इनमें तबलीग की है। और कौम क्या कर रही है? खुद अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। मेरे मौला इन्हें ज़लील और ख्वार कर दे, इन्होंने तेरी नबी की इज्जत नहीं की, इनकी औलादें भी अगर आएंगी तो मेरा तजर्बा कहते हैं वो भी गुमराह होंगी। ये वक्त का नबी कह रहा है वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। सब राजी थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आगे आए, हजरत इब्राहिम पर आए। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बेईमान ने आग में डाला था। क्या नाम है? क्या लफ्ज है? नमरूद। उर्दू में तो ऐसे ही बोलते हैं, मैं उलमा भाइयों से मुज़ाकरे के लिए कहता हूँ असल लफ्ज नमरूद है। आप उठा लें इब्ने कसीर, उस पर उन्होंने तश्कील इबारत में नमरूद कहा है, पर वज़न शुमरूज पे, लेकिन दुनिया में मशहूर नमरूद है तो हम भी नमरूद कहते हैं। तवज्जो, ये जो नमरूद बादशाह है इसने वक्त के वली को नहीं, वक्त के आलिम को नहीं, वक्त के पीरे तरीकत और शेख को नहीं, वक्त के जलीलुल कदर नबी के लिए आग लगवाई है और उसने आग में वहां पहुंचाने के लिए इससे बात की है। तो इससे बढ़ के आप और क्या करेंगे कि उससे सब राजी थे, तो ये बेईमान ऐसा काम क्यों कर रहा था? आने ने रास्ते पर कुर्सी लो, कुर्सी। हजरत मौलाना मुफ्ती हसन दामत बरकातुहु मलालिया तशरीफ लाए। मुझे इजाजत है? तवज्जो, हजरत
इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अगर वो राजी था, वो आग में क्यों डाल रहा था? तो राजी नहीं है। यकीन मानिए पता नहीं कहां से उसने जो है ना क्या कहते हैं वो झूला बनवाया था और कहां पे आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। आपने ना देखो, मैंने देखा है। मैं यूरोप में तुर्की के सफर पे था, वहां एक शहर है उर्फा, ये बिल्कुल मुल्क के शाम की सरहद पे। उर्फा में वो किला आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के नाम से, उसमें वो बाकायदा वो दोनों सतून बने हुए हैं जिनके साथ झूला बनाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। वो नमरूद के इतने हजार साल वो पुराना पूरी आज तक मौजूद है। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सब राजी थे? थोड़ा आगे आया, मैं चलो मुख्तसर करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सब राजी हैं। अगर सब राजी होते तो 12 चश्मे बन के पानी के 12 रास्ते बनते और वहां से हिजरत करते। क्या से क्या मामला? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे फांसी देने के लिए वो पूरी तरतीब के साथ वो लोग आ गए और हुजूर पाक पे आए। रिसालत माब अलैहिस्सलाम को मक्का छुड़वाया गया है। कुरान कहता है इज़ खरजा नहीं इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ अखरजा, निकलवाया उन्होंने। पाक पैगंबर के ऊपर इन लोगों ने इतने जुल्म और तशद्दुद की बर्बरियत के पहाड़ तोड़ के रख दिए। क्यों? कुरान करीम ने जब जिहाद की इजाजत दी तो ये लफ्ज फरमाया उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उन बेईमानों ने जुल्म किए थे, इस वजह से पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सहाबा को इजाजत दी जा रही है कि इनके साथ दो दो हाथ कर ले। तो अगर वो सब राजी होते तो ये कर दे। तो मैंने कहा सुने, इसी तरह आलिम नबी का वारिस है तो आलिम से भी सब राजी नहीं। आलिम जब गुफ्तगू करेगा दलाइल पर, हक वाले राजी होंगे, बातिल वाले परेशान होंगे, अल्लाह वाले राजी होंगे, शैतान वाले नाराज होंगे। ये हमें ना बताओ। और ये सबक हमें किसने दिया? इमाम बुखारी ने। आखिरी किताब लिखी किताब तौहीद व रद्द अलल जहमिया, जहमी फिरका जो 2 नंबर अकायद नजरियात का हामिल था, आवाम को गुमराह करता। इमाम बुखारी ने जाते जाते उस पर रद्द भी सिखाया कि उलमा की जमात, तुम्हारा काम अमर बिल मारूफ है तो नहीं अनिल मुनकर भी। तो मेरे दोस्तों, ये सारी तरतीब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में आपको और हमें समझाई है। और मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने के लिए मजीद अर्ज करने लगा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो सही बुखारी की आखिरी हदीस है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसी से पीछे किताबुल अदब खोलिए तो लिखा हुआ है मन क़ाल फी यौमिही मियत मर्रा हतत अनहु खताया व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। फरमाया अगर ये लफ्ज आपने कह लिया तो आपके उस दिन में तमाम गुनाहों को रब माफ कर देगा, चाहे समंदर की झाग के बराबर क्यों। और यहां तो 2 लफ्ज है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल अज़ीम। उस जगह तो एक ही लफ्ज है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दी। 100 मर्तबा जो कह लेगा उसके पूरे दिन के गुनाहों को रब माफ फरमा देगा। तो हम खत्म बुखारी में बैठे हैं, इसलिए बेहतर है बयान खत्म करने से पहले मैं आप हजरात से मुतालबा करता हूँ, उंगलियां सामने रखें। जब मैं यहाँ से उठूं 100 मरतबा हर बंदा पढ़ ले सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दोनों पढ़ ले तब भी ठीक है, वरना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी पढ़ लें तब भी मामला आपके सामने है, इतना सवाब मिलेगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये अब आपके सवालात हैं, मैंने तो आपके सामने गुफ्तगू पूरी कर ली है। बाकी अब आपके सवाल हैं, नरम सवाल नरम जवाब, गरम सवाल गरम जवाब। तुम्हारे अमाल नामे ये तो पूरी ये खत लिख के भेज देते हैं। फाकुल मदारिस वाले ज्यादा शोबे क्यों नहीं बताते? बाकियों ने ज्यादा शोबे बनाए हुए हैं, उनके पास बच्चा जाए तो मुख्तलिफ शोबे में रखते हैं। यहाँ पर हाफिज कुरान होटलों पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाकुल मदारिस के बारे में सोचना चाहिए। भाई आपका मशवरा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस बोर्ड का आपने लिखा है ना, उसकी कौम ने उनको इतना पाँव पे खड़ा किया अपनी बोर्ड को कि उनने अपनी बोर्ड के लिए इतने शोबे बनवा दिए। और आपने फाकुल मदारिस के लिए कितना तावन पेश किया, जरा आप भी फरमा दें। ये तो वही हाल है। एक बंदे ने मुझे कहा मौलाना मस्जिद में चोरी का पानी आता है। मैंने कहा वो कैसे? अजी बिल लगा हुआ, मीटर नहीं लगा हुआ तो चोरी का पानी आता है, वुजू होगा? मैंने कहा ये मसला बाद में, तू उस मस्जिद का मुक्तदी है? कहते जी हाँ। मैंने कहा तू ही से तो पूछा जाएगा, तूने मस्जिद से कितना तावन किया? मौली दे सिर दे उत्ते सारे कुहाड़ा चाहिए खड़ोते, अजी बिल लवा चा, मीटर लवा चा, तो जेब को हवा न लवा चा, तू मौलवी को कैसे दी? तो तुम लोग जिम्मेदार हो, बाकी हलाल हराम का चक्कर हो तो मौलवी रसे। तो यहाँ आपने फाकुल मदर के साथ कितना तावन किया?
जिस बोर्ड का आपने जिक्र किया उनके फेसबुक पे फॉलोअर 5 मिलियन प्लस है, ये वो लोग हैं। और विफाकुल मदारिस को तो आपने 1 लाख भी फॉलोअर नहीं दिए। तो कुछ तो आप समझें, जितना आप अच्छा तावन करेंगे, जितना गुड़ उतना मीठा इंशाअल्लाह। जबरदस्त। मौलाना मैं मुकल्लिद बनना चाहता हूँ। 4 इमामों में, इमामों को आपस में इत्तेफाक नहीं है, शदीद इख्तलाफ है। इमाम हनीफा का इमाम यूसुफ से, इमाम हसन से, इमाम जुफर से, तो इमाम मोहम्मद से बड़ा इख्तलाफ है। अब इतने इख्तलाफ में मैं क्या करूं, किसकी बात मानूं? जबरदस्त यार, क्या बात। कल कोई उठकर यूं कह दे कि कुरान में आया हुआ है वल्लदीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, पहली किताबों पर भी ईमान लाओ, पहले नबियों के ऊपर ईमान लाओ। हालांकि पहली नबियों के लिए कुरान पाक में है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला और किया था, हजरत दाऊद ने फैसला और किया। व दाऊद व सुलेमान इज़ यहकुमान फिल हर्स इज़ नफशत फीही गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फफहमनाहा सुलेमान। तो कोई कह दे हजरत दाऊद का फैसला और है और बेटे हजरत सुलेमान का और है, लिहाजा 2 नबी हैं, एक नबी का दूसरे नबी से फैसला नहीं मिलता, मैं कैसे इज्जत करूं? तो हम क्या जवाब दोगे? जो जवाब उसका वो जवाब इसका। बच्चू लो, आप अपने दाम में सयाद आ गए, आप मुझे उसका जवाब तहरीर करके दे दें। ये इन लोगों के बस की बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। सुने, इख्तलाफ की नौइयत देखें, इख्तलाफ किस बुनियाद पे है? दलील पे है। और कुव्वत दलील देखें तो जिसकी कुव्वत दलील तगड़ी होगी उसके मसले को फिक़ह में लिख दिया जाएगा। बाकी डॉक्टरों का बोर्ड अगर आपस में इख्तलाफ करता है कि इस मरीज के लिए ये गोली, वो कहते नहीं ये गोली, तो आवामी मरीज बंदा कहे मैं तो गोलियां नहीं खाने, डॉक्टरों का इख्तलाफ है, वो कहेंगे डॉक्टरों का दलील के साथ है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, तुझे जो डॉक्टर दे दे वो खा ले। भाई ये माहिरीन लोग हैं, एक्सपर्ट ऑफ द होली शरिया, वो कहते हैं ये दलील, ये कहते हैं ये दलील, दोनों दलीलें कवी हैं, उनमें फर्क बेहतर और बेहतरीन का है, बेहतर और बेहतरीन का इख्तलाफ है, जिसे कहते हैं औला गैर औला। अवाम औला गैर औला नहीं समझती, तो बेहतर और बेहतरीन का इख्तलाफ है। तो बेहतर और बेहतरीन में जो भी आप करें तो नो इशू। आप इमाम हनीफा की फिका पे चले, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम शाफी की जिस भी फिका पे चले कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस इमाम की फिका पे चलोगे उस इमाम की फिका को समझाने वाला माहिर मौजूद होना चाहिए। आप इमाम शाफी को अपना ले यहां बैठे और इधर फिक्र शाफी का फकीर ना हो तो तुझे करना क्या है? अंधा वंडे रेवड़ियां दे वल वल लेवे, आपको क्या करोगे? तो फिक्र शाफी इख्तियार करनी है, जहां फकीर शाफी बैठा हो तो आप करें, मैं आपको कौन से इनकार करता हूं। लेकिन दलील तो पूछूंगा कि सहाबा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा को छोड़ के दूसरी तरफ जाने की वजह तरजीह भी बता दे। बाकी मने नहीं है, कुव्वत दलील को चेक करना ये डॉक्टर्स का काम है। इन लोगों का इख्तलाफ है तो फुक़हा इसको संभालते हैं, अवाम का मसला नहीं है, अवाम का मामला नहीं है। 4 डॉक्टर बैठ के आपस में तय कर लें इसके लिए ये दवाई, इसके लिए। आज भी हकीम और डॉक्टर की दवाई में इख्तलाफ है या नहीं है? हकीम की दवाई और है, डॉक्टर की दवाई और है, यूनानी और है और जो है ना अंग्रेजी और है। आप जो करते हैं जी ये हिकमत वाला है, ये डॉक्टर, तो आप क्या कहेंगे? हकीम चोर इन या डॉक्टर चोर इन? तो हर बंदे की अपनी तहकीक है, आपकी जिसके साथ मामला बने आप कर लें, तो इस पर कोई इशू नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल अहकाम बाबु अजरिल हाकिम सफा 1092 कदीमी कुतुबखाना कराची वर्के की दाई साइड उठाएं। हजरत साहबी हैं हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु, रसूलुल्लाह का फरमान जिक्र करते हैं, इज़ा हकम अल हाकिम फज्तहद व असाब लहू अजरान व इज़ा हकम फज्तहद सुम्मा अख्ता फलहू अज्र औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाए जब मुज्तहिद दलील इज्तिहाद के साथ काम करे और वो ठीक फतवा दे, अल्लाह उसको 2 सवाब देते हैं, और अगर उससे मिस्टेक हो जाए तो 1 सवाब अल्लाह फिर भी देता है। तो इनके इख्तलाफ पर इन्हें नेकी मिलेगी, तेरी तनकीद पर तुझे गुनाह मिलेगा। लिहाजा पुत्र अपनी अख संभाल के टुरो। ये ऑनलाइन काम करने के बारे में पूछ रहे हैं। बाबा ऑनलाइन काम में अक्सर जो है ना ये वेबसाइट जो है उसमें कोई ना कोई यहूदी ईसाई उनसर मौजूद होता है। अक्सर, मैं ये नहीं कहता कि आपकी इस ऑनलाइन कंपनी में है, तो अक्सर होता है, इसलिए जरा फूंक फूंक के चलें। इसकी पूरी डिटेल आप नेट से ले लें और उलमा और मुफ्तियान कराम के पास आएं ताकि ये आपको समझा दें। अब मैं सबको नाजायज भी नहीं कह सकता और एकदम सबको जायज भी नहीं कह सकता, एक एक की शराइत देखनी पड़ती है। हुज्जियत हदीस पर दलाइल वाज़े फरमाए। मुझे शुरू में कह देते मैं टॉपिक हुज्जियत हदीस रख लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगर अल्लाह ने
आफियत के साथ पहुंचा दिया। तो 26 को भी मैंने आना है, मैं अथॉरिटी ऑफ द सुन्ना हुज्जियत हदीस पे बात करूंगा। गैर मुस्लिम से ट्यूशन पढ़ाना, गैर मुस्लिम से आप ट्यूशन पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने मजहब का दाई ना हो। आप अपने बच्चे को गैर मुस्लिम से ट्यूशन पढ़ाएं और वो अपने मजहब का दाई हो, तो फिर तो आपको बच्चा गया। इसलिए बेहतर है कि उस बंदे को भेजें जो समंदर में तैराकी कर सके या दरिया में, ताकि वो कश्ती पे बैठे, डूबे तो तैर के आ जाए, उसको तो भेज दे, वरना आम बच्चे को न भेजें। कब्र पे अजान दी जाती है, एक आलिम ने कहा मुस्तहब है, जरा इस बारे में बताएं। कब्र में शैतान नहीं आता, कब्र में शैतान नहीं आता, इसलिए कब्र में अजान दी जाती है। हमने तो आज तक सुना है कब्र में फरिश्ते आते हैं, तुम्हारी कब्र में शैतान आते, थोड़ा गुजारा खुदा तो गुहाजते ने कब्र में फरिश्ते आते हैं, जिसमें आता हो मलकान ए आता हो शैतान, ये तो काम खराब है यार। ठीक है, जुमा में इमाम के पीछे जमात में इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ सकते हैं या नहीं, वजाहत फरमाएं। मेरे दोस्तों, कुरान करीम और अहदीस नबविया दोनों को मिलाकर देखें तो किरात खल्फल इमाम का मसला समझना बहुत आसान है। सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204, रब्बे करीम फरमाते हैं वइज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि ऐ लोगों जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम दो काम करो, नंबर 1 जबान को बंद रखो, नंबर 2 खामोश रहो, तवज्जो से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहमत की जाए। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं अजमा अल उलमा अला अन हाज़ा नज़लत फ़िस सलाह, उलमाए कराम का इत्तेफाक है कि आयत नमाज के बारे में उतरी है। ठीक हो गया, इसलिए इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ सकते। इस बारे में लोग एक हदीस से पाक पेश करते हैं कि हदीस में है हुजूर पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो आदमी सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। हमने कहा जी बिल्कुल ये हदीस है, लेकिन इस हदीस से पाक को भी सहाबी से समझो, सहाबी से हदीस समझो, वहाबी से ना समझो। सहाबी इस हदीस का मतलब खुद समझाता है। जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 अब्वाबुस सलाह में मौजूद है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं। उनसे शागिर्दों ने पूछा, खैरुल कुरून का जमाना है, पूछा मुझे बताएं हुजूर पाक अलैहि सलाम ने जो फरमाया नमाज में सूरत फातिहा पढ़ो तो नमाज होगी वरना नहीं होगी, इस हदीस का क्या मतलब है? ये अकेले नमाजी को हुक्म है, ये जमात वाले को हुक्म है? तो हजरत जाबिर पैगंबर के सहाबी ने फरमाया इन्नमा इज़ा कान वहदा, ये मुक्तदी को नहीं है, अकेले नमाजी को। तो बाबा वो अकेले नमाजी की बात है। इसलिए हदीस पाक क्या है, हदीस को वहाबी के बजाय सहाबी से समझे तो इख्तिलाफ नहीं होता। मुफ्ती साहब काला कपड़ा पहनना कैसा है? मुहर्रम में ना पहने, मुशाबियत होती है, आम दिनों में पहनने में हर्ज नहीं है। ये नहीं कह रहा सवाब है, मुस्तहब है, पसंदीदा है, ये नहीं है। पसंदीदा लिबास तो सफेद है, लेकिन अगर कोई काला कपड़ा पहनता है मुशाबियत के दिनों में ना पहने, आप आम दिनों में पहन ले तो गुंजाइश है। आप हजरत मौलाना तरजमील साहब को बुरा कहते हैं, क्यों? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो मौलाना को बुरा नहीं समझता, मौलाना तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आलिम दीन है। एक मसले पे इख्तिलाफ दलील के साथ हमने एक जगह जिक्र किया है। हजरत मौलाना ने जो हिमायत की थी उस पार्टी की, तो हमने कहा मौलाना या पार्टी ज्वाइन कर लें और या आप पीछे हट जाएं। आप तबलीगी जमात में रहकर इस तरह की बात फरमाएंगे तो एतराज आएगा। तो इस तरह अदब के साथ एतराज करने में क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं? अजीब बात है। कुछ दिनों पहले मुझसे किसी ने पूछा मौलाना तरजमील 49 अरब खा गया। मैंने कहा जी मेरा इख्तिलाफ दलील पर है, मौलाना की जात पे नहीं है। मैं आज भी उसको बददियानत नहीं कहता, दयानतदार कहता। इसका ये मतलब थोड़ी है किसी से एक मसले में आपका इख्तिलाफ है जब बददियानत के फतवे ठोक दे। मैं तो मौलाना को उनकी एक बहुत बड़ी दीनी खिदमत है, हमने उन्हें कल भी सलाम किया था, आज भी करते हैं, लेकिन मौलाना अपने तबलीग के दायरा कार में रहे। हम कल भी इनके साथ थे, हम आज भी इनके साथ रहेंगे। इख्तिलाफ दलील का होता है, जलालत का नहीं होता। तो एक मसले में दलील के साथ अपने बड़े को हमने जो है ना क्या कहते हैं एक दरखास्त पेश की है, तो इसको आप यूं न कहें कि आप उनको बुरा कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। ये पर से परिंदा बनाना अवाम का काम होता है, लिहाजा एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। बेटा आप लिख कर मुझे भेजें, इस तरह बातें करेंगे तो एक जज़ाकल्लाह आप लिख के भेजें। सवाल के लिए आप लिख कर मुझे भेज देते तो ठीक होता। एक एक बंदा मेरे कान में बात करना शुरू कर दे तो किस किस को मैं समझाता फिरूंगा? आपके पास आले इल्म भी हैं, उलमा भी हैं, फुक़हा भी हैं, मुफ्तियाने कराम भी हैं, इनसे पूछे आपको बताएंगे, वरना मैं बैठा हूँ, मुझे आप लिख के बता दे तो इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।